Okay, so this chapter people goes by many different names. Okay, we'll start with this chapter, and this chapter basically is measurements and volume. ठीक है, कहीं कहीं पे हम इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी बोलेंगे. समटाइम्स वी नो इट एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ये एक ऐसा चैप्टर है जो दोनों बोर्ड्स में कॉमन है बेसिकली, इन बोथ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. ठीक है. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस पीपल. ओके, ये दिख रहा है सबको? एवरीबॉडी इज एबल टू सी दिस? हेलो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. So which has a larger area? तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है और आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है. So you have been basically given a square field and a rectangular field. Which one has the same perimeter? तो आप देखो यहाँ पे 60 एक स्क्वायर फील्ड है. दिस इज बेसिकली व्हाट अ स्क्वायर फील्ड. ठीक है. And this is basically what a rectangular field. So this is a rectangular field, this is a square field, and this is basically a rectangular field. Okay, so they have been, just 1 minute, let me just so this has been basically a rectangular field. Okay. अरे यार ये किधर गई. So this is basically a rectangular field and this is a square field. You have been asked as to which one is having. So given the figure which one has a larger area. तो दोनों में से larger area भाई साहब किसका हो जाएगा? ठीक है. ओके ओके ओके. So what is basically perimeter? Perimeter is the sum of all sides, and this is basically what the the perimeter of a square is perimeter of a rectangle. यहाँ पे दिया हुआ है ना. It has been given that the perimeter of this is equal to the perimeter of the rectangle. Okay. So now if we know that the area of a square is what? Side का square है कि नहीं? ठीक है. If you look into this, area of a square क्या होता है भाई? अगर कोई स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर. सो दैट्स व्हाट वी हैव, साइड का स्क्वायर. ओके. ऑल राइट ऑफ पीपल, साइड्स का स्क्वायर तो ये हो गया 60. ठीक है. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 अगर इसका साइड है. ठीक है. इफ द साइड इज बेसिकली 60. एक मिनट. Why is it not clearing? ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा वैसा? सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है भाई साहब ये. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन पीपल, यहाँ पे आपका जो स्क्वायर है उसका साइड ही कितना है भाई साहब? 60 मीटर का है. ठीक है. उसका साइड ही अगर आपका 60 मीटर, ये क्या हो रहा है यार? Why am I not able to do this? तो आपका 60 मीटर का भाई साहब स्क्वायर है. ठीक है. यू हैव बेसिकली गॉट अ स्क्वायर विच इज ऑफ 60 मीटर. सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? ऑब्वियसली 60 × 60, दैट इज हाउ मच? 3600 मीटर का स्क्वायर. ठीक है. क्लियर है? ओके ओके. व्हाई इज इट नॉट क्लियरिंग पीपल?
Why is it stuck? It is not moving. Okay, so we know that area of a rectangle is length into breadth. So यहाँ पे length to find the breadth, आपको यहाँ पे breadth find करना है, ठीक है? So perimeter of a square is equal to 4 into side and perimeter of a rectangle is equal to twice into length plus breadth. ये हम पढ़ चुके हैं. तो 4 into side मतलब कितना हो जाएगा? 4 into 60 and twice into length plus breadth, that is 80 plus breadth. So that will be 240 और ये हो गया आपका 2. तो this will be 80 plus b. अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे 120 is equal to 80 plus b. So that will give you how much? b is equal to 120 minus 80, that is 40 meters. ठीक है? So breadth of a rectangle is how much? 40 meters. Are we clear on this one? So area of the rectangular field is 3200 meter square. Area of the square field कितना हो जाएगा बोलो? This will be 60 meter का square, that is 3600 meter का square. So obviously आपका अगर यहाँ पे दिखता है 3600 meter square is more than 3200. So area of the square field is larger. Area of the square field आपका larger हो जाएगा. Okay. Mr. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. ठीक है? She wants, Mrs. Kaushik, sorry, she wants to construct a house. हेलो हेलो, म्यूट कीजिए भाई साहब, म्यूट 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 पीपल. People, please put yourselves on mute. Okay. Okay. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. So, so let's say this is basically a square plot that is having a length and breadth, or rather 25 meter ka side hai. A garden is developed around the house. She wants to construct a house in the middle of the plot. Middle of the plot. Okay. A garden is developed around the house. तो एक ये प्लॉट है, ठीक है. A garden is developed around the house. So this is basically a garden which is developed around the house. Find the cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हमको करना क्या है? वी हैव टू बेसिकली वी हैव टू बेसिकली डू व्हाट पीपल. यहाँ पे हमको गार्डन का एरिया निकालना है, ठीक है. सो हाउ विल वी फाइंड दिस आउट पीपल? मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट. सो शी इज हैविंग अ स्क्वायर प्लॉट. ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है. आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 25 इंटू 25, दैट इज हाउ मच? 625 मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं? और इसमें से अगर हम हाउस का एरिया माइनस कर दें, हाउस का एरिया कितना होगा? 20 इंटू 15, दैट इज 300 मीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द गार्डन? area of the garden area of the garden will be how much people? 625 meter square minus 300 meter square, that will be how much? That is 325 meter ka square. ठीक है. Now what is the cost of developing a garden? So this the cost of developing would be how much? 55 into 325, whatever the answer comes out to be. ठीक है. So let's look at this people. Cost of developing the garden is equal to rate into area of the garden. So what is the area of the garden? So this is basically the garden. ठीक है. हम यहाँ पे देखेंगे भाई साहब, इसमें से, इस एरिया में से, द एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस ए बेस एरिया ऑफ द हाउस. सो व्हाट इज एरिया ऑफ द प्लॉट पीपल? एरिया ऑफ द प्लॉट इज इट इज बेसिकली अ स्क्वायर. सो दिस विल बी हाउ मच? 625 मीटर का स्क्वायर. So that will be 625 meter का square minus area of the house. People, how much will this be? Obviously, this will be how much? तो आपका एरिया ऑफ द हाउस, इट्स अ रेक्टेंगल, सो दैट विल बी 20 इंटू 15, दैट इज 300 मीटर का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस बेस एरिया ऑफ द हाउस, दैट इज 300. सो ये हो गया आपका 325 मीटर का स्क्वायर. So now cost of developing the garden will be rate into area of the garden, that is 55 into 325. So that will be rupees 17875. This will be the cost of developing the garden. ठीक है. Are we clear on this one people? Okay. चलिए जाते हैं हम अगले सवाल पे. द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल. तो आपका भाई साहब रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स. यहाँ पे एंड्स में भाई साहब सेमी सर्कुलर है, मतलब यहाँ तक का इतना पोर्शन आपका सेमी सर्कुलर है. ठीक है. दिस पोर्शन पीपल इज बेसिकली सेमी सर्कुलर एट द एंड्स. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. सो व्हाट यू हैव बीन गिवन, ये 20 है, ये पूरा पूरा जो है तो वो 20 है. और अगर आप इसको देखोगे तो ये 7 मीटर है. तो 7 मीटर मतलब इसका डायमीटर हो गया पीपल. 7 मीटर का डायमीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5, है कि नहीं? ये वाला आपका कितना हो जाएगा भाई साहब?
दिस विल बी हाउ मच, ये 7 है, ये हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को देखो, ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट अ सर्कल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पूछा है भाई साहब, पेरीमीटर। एरिया पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे और इन दोनों का एक जो सर्कल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, और एल्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब हम इसका पेरीमीटर ही निकालेंगे सिर्फ। ठीक है, और इसका इसका नहीं निकालेंगे। चलो लेट्स सी। ओके, तो सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, यार इसको रब कैसे किया जाए, किससे रब किया जाए। ओके, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच पीपल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, द गार्डन इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल एंड टू सेमी सर्कल्स। सो एरिया ऑफ द गार्डन विल बी इक्वल टू, ये जो सेमी सर्कल का एरिया है, ठीक है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। देखो, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हाफ पाई आर का स्क्वायर। ना व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली रेडियस। अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर इज द डायमीटर, है ना, दिख रहा है देखो यहाँ पे 7 मीटर इज द डायमीटर। 7 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर का स्क्वायर, है कि नहीं। 3.5 मीटर का स्क्वायर, 7 मीटर इज द डायमीटर। सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब आपका रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विल बी 7/2, दैट इज 3.5 मीटर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है भाई साहब आपका। ठीक है, तो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 20 - 3.5, दैट इज 13 मीटर्स। ठीक है, ओके, सो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 7 मीटर्स। तो एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स विल बी ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल। तो ट्वाइस इंटू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, हाफ, और ये 2 कट जाएगा, 22/7 है, तो यहाँ पे भाई साहब ये सब कैंसिल होंगे। सो व्हाट यू विल गेट इज 77/2। एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स इज 38.5। चलिए अभी हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी अपना रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 20 × 7। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 20। यहाँ पे अच्छा, हाँ सॉरी, यहाँ पे 20 नहीं होगा, इतना पोर्शन माइनस जाएगा ना। इतना आपका कितना है, 7। इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम, तो ये हो गया 3.5, ये हो गया 3.5। तो दोनों तरफ से 20 में से इसको माइनस कर दो और इसको माइनस कर दो, सो व्हाट यू विल गेट इज 20 - 7, दैट इज 13। 13 × 13 हो गया ये, और ये हो गया भाई साहब लेंथ आपका 7, ब्रेथ सॉरी। सो 13 × 7 दैट्स 91 मीटर का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द गार्डन विल बी ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट विल बी 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस, ठीक है, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अरे कौन वीडियो ऑन कर रहा है यार। ओके, सो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दिस विल बी बेसिकली लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। अभी देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल में इसको मत ऐड कर देना, क्योंकि ये आउटर सरफेस में नहीं आ रहा है, दिस इज इन द इनर सरफेस। ठीक है, हमको यहाँ पे पेरीमीटर को जब करना है तो वी कैन नॉट ऐड इट ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, जस्ट वन। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन कितना हो जाएगा बोलो, लेंथ ऑफ द गार्डन, सो लेंथ ऑफ द गार्डन दैट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। एम आई ऑडिबल पीपल, हेलो। Yes, sir. ओके, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल,
दिस विल बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया आपका, देखो 20, ये हो गया भाई साहब आपका 7, ठीक है, ये हो गया 20, और ओके, आ यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल का कितना होता है, देखो पूरे सेमी सर्कल, सॉरी पूरे सर्कल का जो लेंथ होता है दैट इज 2 पाई आर, तो हाफ का कितना होगा, हाफ इंटू 2 पाई आर, सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी पाई आर, ठीक है। ओके लेट्स सी दिस। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, तो 2 इंटू लेंथ ऑफ द rectangle that is 13, 2 into length of the semicircle that is pi r, so this will be 7 by 2, so that's going to give you how much, 26 plus 22, 48 मीटर, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके। A flooring has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height. So flooring is in the shape of a parallelogram. A flooring is in the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor area of 1000? तो आपका फ्लोरिंग है, देखो ये ठीक है, ये फ्लोरिंग है, ये 24 सेंटीमीटर है और इसका भाई साहब कितना है, हाइट 10 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर एरिया ऑफ 1080 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे फ्लोरिंग है, ठीक है, 24 इंटू 10, और ये पूरा जो फ्लोर है उसका एरिया कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर। Okay, this is basically the floor number of tiles. So number of tiles will be area of the floor upon area of one tile, है कि नहीं। तो area of the floor कितना हो जाएगा भाई साहब, दिया हुआ है आपको, area of the floor is 1080। तो यहाँ पे बेस, अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में लें तो बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर में है, सो वी हैव टू गेट दिस कन्वर्टेड इनटू मीटर, ठीक है। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 24/100, दैट इज 24/100, so that will be 0.24 meters। हाइट कितना हो जाएगा बोलो, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 10/100 दैट इज 0.1। तो एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज 1080 अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल विल बी हाउ मच पीपल, एरिया ऑफ वन टाइल आपको मालूम है, अगर कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसका एरिया कितना होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम पीपल, इज इट ऑडिबल पीपल, क्या सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4, सुनाई दे रहा है एवरीवन। सर। ओके यस सर। ओके सर। ओके ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, याद है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट अगर हम करते हैं यहाँ पे, सो दैट विल बी हाउ मच, एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज बेस इनटू हाइट, so this will be 0.24 into 0.1, that is 0.024, so area of the floor upon area of one tile, so that's going to be how much, 1080 upon 0.24, so this will be how much, 4500। क्लियर है पीपल, ओके। चलिए ये वाला सवाल कीजिए जरा। An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? ठीक है, यार ये क्यों नहीं चल रहा है। So these are certain food pieces which are there. An ant is moving around a few food pieces. So these are basically food pieces which are there. अब ये ant ऐसे जा रहा है देखो, ठीक है, क्लियर है। An ant is moving around, for which food piece would the ant have to take a longer round? तो किसके लिए उसको longer round लेना पड़ेगा, ठीक है। आपका एक, ये 2.8 सेंटीमीटर है, इसमें उसका कवर हो रहा है, एक भाई साहब ऐसा है बी वाला, ठीक है, दिस इज द मूवमेंट, और तीसरा आपका सी वाला है, इस तरह से मूवमेंट है। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, ऑब्वियसली द पेरीमीटर। यहाँ पे देखो 2.8 सेंटीमीटर है इसका, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर, है कि नहीं। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना हो गया भाई साहब,
इसका लेंथ हो गया, इसका इस पोर्शन का लेंथ, इस पोर्शन का लेंथ कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाफ into 2 pi r. So that will be pi r. That is how much? 22 by 7 into r. That is 1.4. तो 7 कितना हो गया भाई साहब? 2, तो दैट इज 4.4। ये हो गया 4.4, और ये हो गया कितना भाई साहब? 2.8। सो टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ पे? 4.4, और ये हो गया 2.8। 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 1 5 6 7, सर 7.2 सेंटीमीटर। हेलो? सर आपका हाँ। स्क्रीन अटक चुका है। नहीं, क्या हो गया भाई साहब? इज दिस विजिबल नाउ? यस विजिबल है? सर। Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। Yes. सो एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो एक भाई साहब चींटी मूव कर रही है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर फॉर विच फूड पीस। तो इसके वाले के लिए, पहले वाले के लिए कितना ट्रैवल किया उसने? 7.2। चलिए सेकंड वाला देखते हैं हम यहाँ पे। तो पहले वाले का, सेकंड वाले का और थर्ड वाले का। तो पहले वाले का देखते हैं, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर प्लस सरकमफरेंस। तो डायमीटर कितना है? 2.8, ठीक है, अपॉन, तो रेडियस हो गया कितना? 1.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? इट इज 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई आर, है कि नहीं? सो दिस विल बी पाई आर। सो 22 by 7 into 1.4, that's going to be 4.4 सेंटीमीटर। एंड दिस 4.4 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर, है ना भाई? इतना ट्रेवल किया ना उसने, ये और ये, दिस इज व्हाट इट हैज ट्रैवल्ड, है कि नहीं? तो यहाँ पे डायमीटर, तो ये हो गया आपका 4.4 सेंटीमीटर। 2.8 प्लस 4.4, दैट्स 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इसमें आते हैं हम भाई साहब, ठीक है। ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.5, और ये हो गया आपका 2.8। तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस इतना, अभी हमने देखा 2.8 सेंटीमीटर का हमने निकाला, कितना होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस? ये हो गया आपका पाई आर, सेमी सर्कल के लिए। हाँ, पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल के लिए कितना हो जाएगा? पाई आर। तो डायमीटर आपका कितना हो गया यहाँ पे? 2.8। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर अपॉन 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल पार्टीशन कितना हो गया? दैट इज 22 बाई 7 इंटू इंटू आर, दैट इज 1.4। सो ये आपका क्लियरली आ जाता है कितना? 4.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द शेप बी, ठीक है, ये 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? पेरीमीटर इज 10.2। चलिए इस पे आते हैं अभी हम, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, और इसको ऐड करोगे। तो आपको कैलकुलेट सिर्फ इतने का ही करना है, देखो इसको, ठीक है। ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा? अगेन वही पाई आर, है ना भाई? सॉरी, पाई आर। तो यहाँ पे देखो 2.8 सेंटीमीटर है क्या डायमीटर? तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 1.4 सेंटीमीटर। तो आपका पाई आर मतलब 22/7, ठीक है। सो दिस विल बी 22/7 इंटू आर, आर दैट इज हाउ मच? 1.4। 7, ये हो गया 2 जा, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 4.4। तो 2 + 2 + 4.4, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। ओके, सो यहाँ पे हो गया डायमीटर इज इक्वल 2.8, सो दैट विल बी 2.8/2, 22/7 इंटू 1.4, तो ये हो गया 4.4, तो ये हो गया 8.4, ठीक है। सो 7.2, 10.2 एंड 8.4 सेंटीमीटर, दीज आर द आंसर्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली भाई साहब आपका 10.2 is greater than 8.4 and this is greater than 7.2, hence the shape for food piece the ant would take the longer round, ठीक है, क्लियर है? The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area of its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. ठीक है, तो एक ट्रपीजियम है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ ट्रपीजियम। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब पैरेलल साइड्स इसके कितने दिए हुए हैं? तो ट्रपीजियम देखो ऐसा होता है, ट्रपीजियम इज लाइक दिस, अ पेयर ऑफ साइड्स of a quadrilateral, if they are parallel, it is called a trapezium। तो यहाँ पे इसका 1 मीटर है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब? 1.2 मीटर। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मच? 0.8। सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम, ये कितना होता है? एनी वन पीपल? दिस इज हाफ इंटू
sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance between them, into distance between them. So half into sum of parallel sides, मतलब 1 plus 2 into distance between them, that is 0.8. So ये 2 और ये हो गया 0.4. So ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 into 0.4, that is 1.2 मीटर का स्क्वायर. ठीक है. So this will be how much? This will be area of the trapezium half into sum of the lengths of the parallel sides into distance between them. So this will be 2.2. So that's going to be how much are people are 88 by 100, that is 0.88 meter square. Okay, that will be the area of the trapezium. The area of the trapezium is 34 centimeters square. Find the length of one of the parallel sides, and the length of one of the parallel sides is 10 centimeter. The height is 4 centimeter. तो easy है, देखो यहाँ पे ये एक ट्रेपीजियम है. दिस इज बेसिकली अ ट्रेपीजियम. ठीक है. इसका एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर. तो ये कितना होता है बोलो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस एक्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 4. तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4. तो ये हो गया 2 इंटू 10 प्लस एक्स. दिस विल बी इक्वल टू 34. तो यहाँ पे 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17. एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 7. ठीक है. एक्स की वैल्यू मतलब ये दूसरा वाला साइड कितने का हो जाएगा, 7. ठीक है. ओके. तो ये आपका पी क्यू आर एस है. यहाँ पे लेट से हमने इसको मान लिया 10 सेंटीमीटर. हाइट आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. पी टी आपका कितना है, व्हाट इज द फॉर्मूला. सो ऑब्वियसली area of the trapezium will be half into sum of the lengths of the parallel sides into height. So this will be 4. ठीक है. 34 by 2 is equal to this. So this will be how much people, PS plus QR is equal to 17. और 17 से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 7. So the length of the other side obviously is 7 centimeter. Length of the fence of a trapezium shaped field is 120 meter. ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है. तो लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 120 मीटर. तो यहाँ पे लेट से ए बी सी डी है. आपको बी सी दिया हुआ है कितना है, 48 मीटर. सी डी दिया हुआ है कितना है भाई साहब, 17 मीटर. ए डी दिया हुआ है यहाँ पे 40 मीटर. ठीक है. तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. ए बी इज परपेंडिकुलर टू द, यहाँ पे ए बी कहाँ से होगा भाई साहब, चलिए पहले इसके परपेंडिकुलर साइड्स ए डी एंड बी सी. ए बी, अच्छा ऐसा है. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब ये फील्ड है. लेट्स से दिस इज द फील्ड. वन सेकेंड. क्लियर क्यों नहीं हो रहा यार ये. ओके. सो दिस इज बेसिकली ए बी सी डी है. ठीक है. और यहाँ पे लेंथ ऑफ द फेंस इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम. पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम भाई साहब कितना दिया हुआ है आपको, 120. तो एक साइड का लेंथ निकाल सकते हैं अगर 3 साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है. सो बट ऑब्वियस सी बात है कि एक साइड का हम लेंथ निकाल सकते हैं, है ना. तो दिस विल बी हाउ मच पीपल आर. सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, जी तो एरिया होता है तो मतलब हमको क्या चाहिए, पैरेलल साइड का लेंथ चाहिए. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस विल बी पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 120 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. तो ये हो गया आपका, दिस विल बी 15 मीटर. Half into sum of parallel sides into height. So this will be how much people are, half into 88 into 15, that is 660 meter square. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8
एंड 13 मीटर। तो यहाँ पे भाई साहब आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ए सी की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई साहब, 24 मीटर। ठीक है। ओके, एम डी की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 8 मीटर्स। ठीक है। एंड बी एन की वैल्यू दी हुई है कितनी, 13 मीटर्स। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू ए सी इंटू बी एन, दैट इज ए सी इंटू बी एन, दैट इज 13, दैट इज 12। ठीक है, तो ये हो गया 156 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वी हैव सीन दिस ऑलरेडी, ए सी इंटू एम डी। तो 24 इंटू 8 दैट इज 12 इंटू 8 दैट इज 96 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, जस्ट वन मोमेंट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस पीपल। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, यार जा 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 जा, people just log into the same id after you get logged off, just log into the same id people। एक ही मिनट बाकी है अभी, तो बोल दे रहा हूँ मैं आपको कि just log into the same id once you get logged off। ठीक है। So diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars drop from the remaining opposite sides। तो ये diagonal जो है आपका, Okay, people in maths we were yesterday doing. So two surfaces of a raised platform in the shape of a, तो हम यहाँ पे basically we are doing mensuration out here, ठीक है, measurements, और जिसको हम बोलते हैं mensuration, और which is also known as mensuration। ठीक है, top surface of a raised platform, ठीक है, in the shape of a regular octagon is shown in the figure। find the area of the octagonal surface। आपको यहाँ पे area of the octagonal surface find out करना है। ये 11 मीटर है। ठीक है, आपका हर साइड कितने का है वैसा, 5 मीटर का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 5 मीटर। देखो हम पहला ये वाला जोन ले लेते हैं, ये हो गया एरिया ऑफ 1। अगर मैंने यहां से समझ लो एक, तो ये वाला हो गया एरिया 2 और ये वाला हो गया आपका एरिया 3। ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। ठीक है भाई साहब, ओके। तो एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1 मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रेपेजियम, है ना। एरिया ऑफ 1 मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट विल बी हाउ मच, हाफ इनटू sum of parallel sides into distance between them, है ना, distance between them, half into sum of parallel sides into distance between them। half into sum of parallel sides कितना हो जाएगा बोलो, half
into sum of parallel sides, मतलब हो गया आपका 5 plus 11 into distance between them, that is 4. So you get 2 2s are 4, you get 16 into 2, that is how much? 32 मीटर का स्क्वायर. अगर ये होता है आपका 32 मीटर स्क्वायर, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 32 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ पोर्शन 3. अभी एरिया ऑफ 2 निकालते हैं हम. देखो एरिया ऑफ पोर्शन 2 ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 11 मीटर इनटू 5 मीटर, दैट्स हाउ मच पीपल? 55 मीटर का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 55 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया 32 और 32. इन तीनों को आप ऐड कर लो भाई साहब. 2 + 5 7 8 9, 3 + 5 8 9 10 11, 119 मीटर स्क्वायर. दिस विल बी बेसिकली द एरिया ऑफ द एंटायर फिगर. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो इन अ रेगुलर रेक्टेंगल एंड ऑल साइड्स आर, तो रेगुलर ऑक्टागन है. देखो हमेशा याद रखना, रेगुलर मतलब क्या होता है? सारे साइड्स बराबर होंगे. किसी भी पॉलीगॉन को, पॉलीगॉन मींस एनी साइडेड फिगर विच हैज मोर देन 2 साइड्स. ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन में क्या हो जाएगा भाई साहब? रेगुलर मतलब होगा ऑल, रेगुलर मतलब ही होता है ऑल साइड्स इक्वल. रेगुलर मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो रेगुलर ऑक्टागन हो गया ये. सो दिस विल बी हाउ मच? सो आपका भाई साहब यहाँ पे एरिया ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन 2 into एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. भाई साहब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ये वाला जो रेक्टेंगल है, इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर दो और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दो भाई साहब. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल? एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम विल बी हाफ इंटू 2 into हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे हो गया 2 into हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज 5 + 11 इंटू हाइट, दैट इज 4. तो हो गया 64. ठीक है, 64. एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा? 11 into 5, so that will be length into breadth, that is 11 into 5, 55 मीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया हो गया आपका 64 for 55, that is 119 मीटर का स्क्वायर. क्लियर है? ओके okay, there is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided into 2 different ways. Find the area of this park using both ways. तो आपका भाई साहब इस तरह का है. ठीक है, तो पहले ज्योति ने क्या किया? ज्योति ने इस तरह से डिवाइड किया, मतलब बीच में एक लाइन खींच दी. ठीक है, और कावेरी ने क्या, कविता ने क्या किया भाई साहब? ऐसे डिवाइड कर दिया. तो अगर हम ऐसे जाते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम, ट्वाइस इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. और अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर लेंगे, दोनों से हमको सेम एरिया आ जाएगा. ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट द सेम एरिया पीपल. ठीक है, ये बेसिकली पार्क है. दिस इज द पार्क. यहाँ पे 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये पूरा आपका 30 मीटर है, ये आपका 15 मीटर है. ठीक है, तो आपके ये दोनों साइड्स नहीं दिए हुए, लेकिन ये दोनों साइड्स आपके क्या है भाई साहब? इक्वल है. ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम. तो अगर हमको ये वाला करना है, ठीक है, सो हाउ डू वी डू दिस? द गिवन फिगर इज अ पेंटागन. पेंटागन मतलब 1 2 3 4 5 साइड्स हैं इसके. द गिवन फिगर इज अ पेंटागन. वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागनल पार्क. तो फटाफट से देखते हैं हम. यहाँ पे देखो, ये ज्योति का डायग्राम हो गया एंड दिस इज बेसिकली कविता's डायग्राम. बाय यूजिंग बोथ द डायग्राम्स वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया. सो लेट्स से हम यहाँ पे फर्स्ट वे बाय ज्योति's डायग्राम हम देखते हैं. एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCP. ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEDP, और दोनों भी सेम ही है. ठीक है, अभी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है, यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन से हो गए? ये वाले, ये 15 है, ये 30 है, और यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा बोलो? ये टोटल 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7.5, उसका आधा. ठीक है, ये हो जाएगा उसका आधा, 7.5. सो दिस विल बी हाफ इंटू AB प्लस BC इंटू CP प्लस हाफ इंटू ये. तो आपका भाई साहब यहाँ पे 30 + 15 इंटू CP. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, समझ लो हमको यहाँ पे ऐड कर दिया, अगर हमने यहाँ पे दोनों को कॉमन निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो भी आपका देखो CP प्लस DP कितना आ जाएगा? 15. तो 45 इंटू CD, तो आपका आ गया यहाँ पे 45 इंटू 15. सो दैट विल बी हाउ मच? 337.75 मीटर स्क्वायर. ये हो गया टोटल एरिया. अभी अगर हम जो दूसरा वाला डायग्राम था, दैट इज कविता's डायग्राम, इससे भी अगर जाएंगे तो भी हमको मिल जाएगा. कैसे? देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे 15 इंटू 15. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो हाउ विल वी डू दिस?
here perpendicular AM is drawn, AM is equal to 30 minus 15, that is 15. तो area of triangle ABE plus area of square, half into base into height plus area of square, तो half into 15 into 15, और इधर हो गया कितना भाई साहब आपका 375 मीटर का स्क्वायर, 337.5 मीटर का स्क्वायर, द सेम एरिया विल बी कमिंग। ठीक है, चलिए आप लोग बुक्स निकालिए, फटाफट फटाफट नोटबुक्स निकालिए, क्विक 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 एवरीवन, क्विक क्विक एवरीवन। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम शोज आउटर डायमेंशंस कितना है, आउटर डायमेंशंस आपके 24 into 28 है, एंड द इनर डायमेंशंस, आउटर डायमेंशन मतलब ये वाला देखो, ठीक है, और ये इनर डायमेंशन है 16 into 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द सेक्शन इज सेम। ठीक है, तो आपको भाई साहब एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो ये 28/24 हो गया, और इनर भाई साहब कितना हो गया 20/16 हो गया। ठीक है, तो इस सारे को एरिया फाइंड करना है, 1 2 3 4 और ऑब्वियसली ये वाला। ठीक है, सो अभी पहले आते हैं हम भाई साहब, ईच सेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ओके, तो टू फाइंड एरिया वी फाइंड, तो कंसीडर सेक्शन 1। अभी हम सेक्शन 1 पे आते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 में भाई साहब हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ्स, आपको पैरेलल साइड्स के लेंथ्स दिए हुए हैं 16 और 24, ये तो दिया हुआ है। अभी आपको हाइट फाइंड आउट करना है, हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब, ठीक है, सो हाइट, हियर हाइट मींस विड्थ ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो अभी विड्थ ऑफ द फ्रेम कैसे निकालेंगे, आउटर लेंथ कितना है आपका 28 सेंटीमीटर, दैट विल बी इनर लेंथ प्लस ट्वाइस इनटू विड्थ, है ना भाई साहब, ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया, तो 28 मतलब समझ में आ रहा है, देखो इनर लेंथ कितना है 20 प्लस ये, मतलब ये दोनों तो इक्वल ही होगा ना, समझ में आ रहा है। देखो आउटर लेंथ जो है, ये आउटर लेंथ, ये वाला लेंथ, ये कितना होगा भाई साहब, ये 28 है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होगा। ठीक है, इसमें से आप 28 प्लस इसको करेंगे, तो 28 प्लस ट्वाइस इनटू विड्थ, ये विड्थ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हैज आउटर डायमेंशंस, फाइंड द एरिया इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, मतलब ये ऐसे आ रहा है, देखो ये विड्थ सेम है, ये विड्थ आपका चेंज नहीं हो रहा है, दिस विड्थ इज द सेम, तो यहां पे जितना होगा यहां पे भी भाई साहब उतना ही होगा, है ना। तो आउटर लेंथ विल बी हाउ मच, इनर लेंथ प्लस ट्वाइस इनटू विड्थ, तो इनर लेंथ कितने का हो गया भाई साहब आपका, इनर लेंथ हो गया आपका 20, ठीक है, एंड ट्वाइस इनटू विड्थ, तो ट्वाइस इनटू विड्थ मतलब ये एक विड्थ हो गया और ये एक विड्थ हो गया, है कि नहीं, ट्वाइस इनटू विड्थ, तो 28 इज इक्वल टू 20 प्लस ट्वाइस इनटू विड्थ, so that will be 28 minus 2, 20, इसको हम इधर ले लेंगे, तो this will be 28 minus 20 plus twice is equal to twice into width। ठीक है, so this will be how much, 8 is equal to twice into width, तो width हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन 1 हाफ into sum of parallel sides into height, तो this will be half into 24 into 16, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज 80 सेंटीमीटर, भाई इसका जितना एरिया होगा इसका भी उतना ही एरिया होगा, है कि नहीं, इसका 80 आएगा तो इसका भी 80 आएगा। अभी हम इसका और इसका एरिया सेम होगा, ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी कंसीडर सेक्शन 2, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 28 इंटू द हाइट विच इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर, half into 28 plus 20 into 4, so that will be 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी भाई साहब एरिया वही हो जाएगा, जितना सेकंड वाले पोर्शन का एरिया आएगा उतना ही फोर्थ वाले पोर्शन का भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, so hence area of the section 4 is 96। okay, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box requires lesser amount of material to make, किसमें lesser amount of material use होगा in order to make, देखो अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज विल बी एरिया, और क्यूबोडियल बॉक्स का एरिया कितना होता है, एनीवन पीपल, क्यूबोडियल बॉक्स का एरिया कितना होगा, दिस विल बी ट्वाइस इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला चाहे तो लिख लो, क्यूबोडियल बॉक्स का एरिया, क्यूबोडियल बॉक्स का एरिया या क्यूबॉइड का एरिया, इसको हम बोलेंगे भाई साहब एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो पहले वाले का कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा लीजिए भाई साहब 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 50, 60 इंटू 50, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, सो दैट विल बी 2 6 4 2 4 0 0 4 5 20 और ये 0 0 6 5 30 और ये 0 0, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 2
ये 0 0 सब में आ जाएगा, दिस विल बी 0 0 0 0 4 हो गया यहाँ पे, 3 + 4 5 6 7 74 4 2 8 7 2 14, ठीक है। इसका हो गया भाई साहब एरिया कितना 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही चीज यहाँ पे भी करनी है देखो, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50, एक्चुअली में कितना आ जाएगा ये 2500, 2500 इसका भी आएगा, ठीक है। और 2500 भाई साहब इसका भी आ जाएगा 2500, तो ये हो गया इंटू 2, सो दिस विल बी 2 25 25 50 और ये हो गया 75 7500, सो दिस विल बी हाउ मच 150, 75 2 जा 150 और ये 20, तो किसका ज्यादा एरिया आ गया भाई साहब, इसका ज्यादा एरिया आ गया, ठीक है। ओके, विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट, द लेसर अमाउंट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉक्स ए, ठीक है, लेसर अमाउंट इज रिक्वायर्ड बाय बॉक्स ए, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब एरिया है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, क्यूबोडियल टोटल सरफेस एरिया हो गया ये, ठीक है। सो दिस विल बी 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 50, सो दिस विल बी 24, ये हो गया आपका 14800, 50 ये हो गया 6 इंटू, अच्छा क्यूब का देखो ऐसे करो या ऐसे, क्यूब का एरिया क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे हम, क्यूब का एरिया होता है भाई साहब 6 इंटू एल का स्क्वायर, दैट इज लेंथ का स्क्वायर, दैट इज 50 का स्क्वायर, दैट इज 2500, तो ये हो गया आपका, तो ऑब्वियसली सेकंड वाले का एरिया लेस रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, the surface area of the box A is less than that of box B। चलिए भाई साहब इसको करना है, इसको करना है, फटाफट करना है। A suitcase with measures, a suitcase measures 80 centimeter into 48 into 24 centimeter is to be covered with a टैरापोलिन क्लॉथ। टैरापोलिन क्लॉथ मतलब क्या होता है, एक ऐसा सूटकेस का कवर देखा है आपने, राइट, तो उसको कवर करने का क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टैरापोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो भाई साहब आप पहले यहाँ पे क्या करोगे, कवर करना है मतलब एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया क्यूबोर्ड क्या कितना होता है भाई साहब, वही सेम ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसको ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, इससे आ जाएगा। और तो यहाँ पे एक सूटकेस है देखिए, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सूटकेस 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, इससे आपको टैरापोलिन क्लॉथ को इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल एरिया ऑफ टैरापोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, एक सूटकेस का इनटू 100, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट इंटू 100, ठीक है। So that will be how much, 80 plus into 48 plus 48 into 24 plus 80 into 24, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका 13824, इतना आ गया आपका एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस कितना है, कितना है 100 सूटकेसेस, एक सूटकेस का, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, अब 100 से, ठीक है, 100 सूटकेसेस जैसे लगेंगे तो कितना टैरापोलिन क्लॉथ लग जाएगा, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, ठीक है, इंटू 100, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, आपका इसका कितना एरिया होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। ये 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए जो टोटल एरिया है वो इतना है, तो आपका ये जो क्लॉथ आप यूज कर रहे हैं, क्लॉथ का लेंथ इंटू ब्रेथ इसके बराबर होना चाहिए। ब्रेथ आपको दिया हुआ यहाँ पे कितना है 96, ठीक है, ठीक है, 96 दिया हुआ है आपको। सो लेंथ इंटू 96 इज इक्वल टू दिस, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी अपॉन 96, सो दिस विल बी 144, तो लेंथ हो गया आपका 1400 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये एक सूटकेस का नहीं है, 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना टोटल क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन, ठीक है। Okay, so this would be done. तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा वैसे, टैरापोलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस, इतना, तो एक सूटकेस को, ठीक है, एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, दैट इज 144, दैट इज डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो द टैरापोलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस इज
144, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में तुम्हारा आंसर आया ना, सो योर आंसर इज इन हाउ मच, सेंटीमीटर में आया। अगर तुम इसको मीटर में निकालना चाहो तो उसको 100 से, वरना आंसर यहां तक भी रखोगे तो भी सही है, ठीक है। हाउ मेनी मीटर, अच्छा चलिए सॉरी, यहाँ पे मीटर पूछा है, तो तुम्हारा आंसर आया सेंटीमीटर में, इसको मीटर में तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो दैट विल बी 144 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 L का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 100, तो L की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, द रिक्वायर्ड साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। Ruxar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter, 1.5 meters. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ देखो, कैबिनेट है 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ठीक है, और ये 1.5 मीटर है। नीचे की तरफ उसने पेंटिंग नहीं किया है, ठीक है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, यहाँ पे मेजरमेंट्स आपको दिए हुए हैं 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, एक्सेप्ट फॉर द बॉटम ऑफ द कैबिनेट शी हैज पेंटेड ऑल। सो यहाँ पे उसने सिर्फ बॉटम को पेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो कितना एरिया उसने कवर किया भाई साहब, ये तो मतलब आप क्या करोगे, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड माइनस ये वाला है कि नहीं, इसको आपको माइनस करना, ये आप पेंट नहीं कर रहे हो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड माइनस बेस एरिया। बेस एरिया कितना हो जाएगा, 1 into 2, है ना, क्लियर है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, माइनस यहाँ पे क्या करोगे, ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको आपको माइनस करना है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया पेंट नहीं कर रहे हैं तो पेंटिंग में आप गिनेंगे नहीं इसको, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 into 1 plus 1 into 1.5 plus 2 into 1.5 minus 2 into 1. So this will be 2 into 1.5 minus 2, ठीक है, 13 minus 2 11, it is 11 meter square. The total surface area Ruxar painted is 11 meter square, 11 meter square हो जाएगा, ठीक है। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height as 15, 10 and 7 meter respectively. From each can of paint, जिसका कितना है भाई साहब 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? तो पहले आप क्या निकालेंगे भाई साहब, रूम का एरिया निकालेंगे, ठीक है। You will basically first have to find out the area of the room which you have to paint. और एरिया कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होगा रुद्राक्ष? नहीं, एरिया, अरे एरिया क्या होगा, क्यूबोडियल एरिया है ना भाई साहब, रूम मतलब क्या हो गया, क्यूब ना, हाँ। तो ये होगा एरिया आपका, ठीक है। तो इसमें से आप पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइड विद लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ध्यान दो, यहाँ पे फ्लोर को कोई पेंट नहीं करता है, फ्लोर इज नेवर पेंटेड। तो आपका भाई साहब 4 दीवार और ऊपर की छत पेंट हो रही है, लेकिन फ्लोर नहीं पेंट हो रहा है। तो फिर से आप क्या करेंगे, पूरा ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ को आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो पेंट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। ओके ओके, चलिए भाई साहब देख लेते हैं यहाँ पे आपका पूरा, तो ये 15 मीटर है, दिस इज बेसिकली 15 मीटर, ये 10 मीटर, ये 7 मीटर, ठीक है। टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, माइनस बेस एरिया, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 10, 10 into 7 plus 15 into 7 minus 15 into 10. So this is going to be how much? 150 plus 7, ये हो गया 150 minus. So this is 650 minus 150. That's going to be how much? 500 meter square. ठीक है? तो total area to be painted is how much? 500 meter square. और एक डब्बे में कितना कवर हो सकता है? एक डब्बे में कितना कवर हो सकता है? It has been given to you 100 meter square. तो कितने डब्बे पेंट लगेंगे आपको? 5. कैसे आएगा ये 5? 500 meter square divided by 100 meter square, ठीक है। सो एरिया टू बी पेंटेड एंड नंबर ऑफ कैंस 100 meter square, तो नंबर ऑफ कैंस कितने होंगे 1। अगर एरिया आपका कितना है
500 मीटर स्क्वायर है तो कितना होगा? सो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी डायरेक्ट वेरिएशन, है कि नहीं? तो n into 100 will be equal to 500, नंबर ऑफ कैंस हो जाएंगे आपके 5 कैंस। टोटल 5 कैंस आर रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम। जब आपका डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो आपको मालूम है वेरिएबल्स के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, describe how the two figures below are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? अभी देखो lateral surface area क्या होता है? ये वाला एरिया होता है, ये साइड वाला एरिया, ठीक है? ये साइड वाला एरिया आपका lateral surface area होता है, ये वाला एरिया, ठीक है? तो ये आपका क्या है? सिलेंडर है। देखो सिलेंडर का lateral surface area कितना होता है? सिलेंडर का, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, सिलेंडर का lateral सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज कर्व्ड सरफेस एरिया। सो सिलेंडर्स लैटरल सरफेस एरिया इज ऑल्सो नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज हाउ मच? पाई आर एल, वेयर पाई इज 22/7, आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ, ठीक है? तो आप बताओ यहाँ पे इसका रेडियस कितना है? व्हाट इज द रेडियस हियर? तो पाई हो गया कितना? 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज ऑलवेज diameter by 2, तो यहां पे रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, so this will be 7/2 into L, that is 7, तो ये और ये कैंसिल, और ये हो गया 11, ये हो गया कितना आपका? 77 मीटर का स्क्वायर। किसका? इसका कर्व सरफेस एरिया। दिस इज बेसिकली द कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, दोनों भी लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच? 77 मीटर का स्क्वायर। किसका? इस सिलेंडर का। इसका कितना हो जाएगा? देखो इसका ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, मतलब आप क्या ले रहे हो हर बार? ब्रेथ इनटू हाइट और एक बार लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं ले रहे हो, ठीक है? तो यहां पे लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। यहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होगा, ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, तो ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट, दैट इज 7 into 7, 7 into 7 प्लस ब्रेथ इनटू हाइट 7 into 7, ठीक है? 7 into 7, तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 249 प्लस 49, तो ये हो गया आपका ट्वाइस इंटू 98, दैट इज 196 मीटर का स्क्वायर। किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा? इसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा, ठीक है? क्लियर है? सो व्हिच वन हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया? ऑब्वियसली द क्यूबॉइड। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर डायमीटर बाय 2 हो गया आपका 7/2, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर तो 2 पाई RH, ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है पाई RH, ठीक है? दिस विल बी बेसिकली पाई RH, ठीक है? सॉरी, हाँ 2 पाई RH होगा, करेक्ट करेक्ट, आई एम सॉरी, ये 2 पाई RH होगा, इट्स करेक्ट, ठीक है? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंडर, आई एम सॉरी पीपल, इट इज 2 पाई RH, दिस इज 2 पाई RH, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई RH, ठीक है? ओके, सो लेट अस फाइंड द सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो दिस विल बी हाउ मच? 196, तो 196 is definitely greater than 154. A closed cylinder tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much does the sheet of metal is required? How much sheet of metal is required भाई साहब? कर्व एक क्लोज सिलेंडर है, ठीक है? ये टैंक है बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ सिलिंड्रिकल टैंक। इसका रेडियस कितना है भाई साहब? आपका रेडियस दिया हुआ है कितना है? 7 मीटर है, और हाइट कितनी है आपकी? 3 मीटर। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, ठीक है? क्लोज्ड है बेसिकली। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, total surface area of a cylinder is how much people? 2 pi RH plus 2 pi R का स्क्वायर, ठीक है? 2 pi RH plus 2 pi R का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखते हैं? 2 pi R into R plus H, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? ओके, तो यहां पे आपको सारा मेटल शीट लेना पड़ेगा, नीचे का, साइड का और ऊपर का भी, ठीक है? ओके, सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा बोलो? 2
into 22/7 into 7 into r plus h, that is 7 plus 3. ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया. r plus h मतलब यहाँ पे हाइट कितना है. ठीक है, so this will be how much? 44 into 10, that is 440 मीटर का स्क्वायर. That will be the total surface area. Are we clear to this one, people? समझम. Okay. तो ये हो गया 7, रेडियस हो गया आपका 7, हाइट हो गया आपका 3 मीटर. What is the formula for total surface area of the cylinder? Total surface area of the cylinder is 2 pi r into r plus h. 2 pi r into r plus h या h plus r, जो भी आपको लिखना है. ठीक है, so total surface area this will be 2 into 22/7 into 7, 3 plus 7, तो ये हो गया 7 into 10, so ये हो गया 22, 44 into 10, 440 मीटर का स्क्वायर. So 440 मीटर स्क्वायर of metal sheet is required here. Clear है? The lateral surface area of a hollow cylinder is कितना दिया हुआ है आपको? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. If it is cut along its height and formed a rectangular sheet, ठीक है, of width 33 सेंटीमीटर, find the perimeter of the rectangular sheet. अभी आपने क्या किया हुआ? देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये एक हॉलो सिलेंडर है. ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है. इसको आप कट करके ऐसा एक रेक्टेंगुलर शीट बना रहे. आपको पूछा है कि इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होगा. ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? यहाँ पे आपको लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है. लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा? 2 pi r into r plus h, है कि नहीं? 2 pi r, नहीं सॉरी, दिस विल नॉट बी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा भाई साहब? 2 pi r h. आई एम सो सॉरी पीपल, 2 pi r h. ठीक है, तो ये 2 pi r h की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 4224. so that will be 2 into 22/7 into r, that is how much people? R is, it is cut along its side and form a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर. ओके, 2 pi r h की वैल्यू, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं हम. 2 pi r h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 4224, है ना? ओके, ऑफ विड्थ यहाँ पे विड्थ को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये आपका देखो हॉलो सिलेंडर है. दिस इज बेसिकली अ हॉलो सिलेंडर. लैटरल सरफेस एरिया इज हाउ मच? 4224. लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस एरिया, दिस सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड द लैटरल सरफेस एरिया. सो दिस इज द लैटरल सरफेस एरिया. इसको खोलकर हमने एक शीट बनाया हुआ है. दिस इज हाउ इट हैज बीन फॉर्म. तो आप यहाँ पे देखो, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, है कि नहीं? ये जो रेक्टेंगल बना है दैट विल बी ट्वाइस इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लैटरल सरफेस एरिया ये कितना हो गया? 33. और आपका लेंथ कितना हो गया? लेंथ कितना हो गया? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो ये हो गया आपका 33 सेंटीमीटर. ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो ये हो गया 2 pi r. लैटरल सरफेस एरिया 4224. 2 pi r h is equal to 4224. 2 into 22/7 into r into h, that is 33 is equal to 4224. r की वैल्यू कितनी हो गई? 4224 into 7, 2 into 22/33, तो ये हो गया 32/7, 32 into 7/11. ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 pi r. ठीक है, 2 pi r, 2 into 22/7 into this, so this will be how much? 128 सेंटीमीटर. क्लियर है लेंथ? क्योंकि आपको यहाँ पे दिया ही हुआ ये, सो दैट इज हाउ वी विल फाइंड आउट. ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 161 हो गया ये. ओके, अ रोड टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. ठीक है, रोड रोलर है ये बेसिकली रोलर है. रोलर ऐसे घूमता है भाई साहब. ठीक है, तो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. एक रोड को लेवल करने के लिए रोड रोलर चल रहा है. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. ठीक है, डायमीटर, तो रोलर का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है और इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस पीपल. ठीक है,
तो आपका सिलेंडर है, देखो ये आपका रोड रोलर है, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना है रेडियस, कितना होता है डायमीटर बाय 2, तो 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ कितना हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये लेंथ हो गया, दैट इज द लेंथ। एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन 1 रेवोल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच, 2 pi RH, 2 into 22/7 into 42 into 100, तो 44 into 600 that is 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन 1 कितना हो गया, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन 750 रेवोल्यूशंस क्या हो जाएगा, 750 into एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस्ड इन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज हाउ मच, 19800 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज द एरिया प्रेस्ड। तो एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस्ड इन 750 रेवोल्यूशंस इज हाउ मच, दिस मच, ये हो जाएगा टोटल एरिया। सो 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोड कितना हो जाएगा भाई साहब, इतना बाई 10,000, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, 1980, ठीक है। दैट विल बी, इन मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर, दिस विल बी मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द रोड, 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट, वहां पे आप, ओके पीपल, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर, तो सिलिंड्रिकल कंटेनर है, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर की तरह कंटेनर है, ठीक है। सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, तो उसके बेस का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। कंपनी पुट्स अ लेबल, तो आपका रेडियस कितना हो गया, डायमीटर बाय 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द लेवल ऑफ द कंटेनर 20 - 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इफ द लेवल इज प्लेस्ड व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, तो लेवल आपका यहाँ पे है, देखो ये लेवल ऐसे प्लेस्ड है ना, तो लेवल मतलब क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बोलो, 2 pi RH, दैट इज 2 into 22/7 into 7 into H, दैट इज 16। कर्व सरफेस एरिया ये भाई साहब, दिस इज बेसिकली द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। 2 into 22/7 into 7 into 16, तो आपका हो गया यहाँ पे कितना आ गया, 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर है। इसके ऊपर लेबल चिपकाना है, एडवर्टाइजमेंट का लेबल चिपकेगा, ठीक है। तो कितने एरिया पे चिपकेगा भाई साहब, 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Okay, given a cylindrical tank, in which situation will you find the surface area, in which situation will you find the volume? तो आपको भाई साहब यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक सिलिंड्रिकल टैंक आपको दिया हुआ है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, आपको किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करना है और किस सिचुएशन में वॉल्यूम। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, टू फाइंड हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है, इसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम, वेरी गुड। और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है बच्चा बाड़ी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पीपल, हाउ मच विल इट बी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज, ये हो गया आपका R दैट इज रेडियस, और ये हो गया आपका H, और पाई की वैल्यू 22/7, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इसको अगर मुझे प्लास्टर करना है तो कितना, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली व्हाट, सरफेस एरिया, दिस विल बी सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, तो जो स्मॉलर टैंक्स होंगे यहाँ पे, ऐसे स्मॉलर टैंक्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स को हम इससे पानी से भर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर टैंक, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, द कॉन्सेप्ट दैट यू विल इन्वॉल्व हियर इज वॉल्यूम। आर वी क्लियर। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपसे पूछा है कि किस केस में क्या निकालेंगे, कहाँ पे आप वॉल्यूम निकालेंगे और कहाँ पे आप सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सो इन विच, तो यहाँ पे हो गया फॉर दिस सिचुएशन वॉल्यूम इज टू बी मेजर्ड, तो अगर आपको भाई साहब सरफेस प्लास्टर करना है तो यहाँ पे टू फाइंड द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर द सिलिंड्रिकल टैंक, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, तो छोटे छोटे टैंक्स जिससे आप वाटर को भर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स रिक्वायर्ड टू फिल द वाटर, वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ठीक है।
Diameter of a cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter. Diameter of the cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? देखो यहाँ पे डायमीटर क्या है, डायमीटर के साथ भाई साहब क्या है, डायमीटर ये आपका है, देखो ये किसी का डायमीटर ज़्यादा है, किसी का डायमीटर कम है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए कितना है 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर ए कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 7/2। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच दैट इज 14, ठीक है, क्लियर है। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14, so that will be how much, that will be basically 539 centimeter cube. Volume of cylinder A is 539. Diameter of the cylinder कितना हो गया 14, तो radius of the cylinder कितना हो जाएगा 14/2 that is 7 centimeter। तो volume of the second cylinder कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच, सो दैट विल बी 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली मोर, ठीक है। अभी ऑब्वियसली 1078 इज ग्रेटर देन 539, सो सिलेंडर बी हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई साहब, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया में देखो यहाँ पे 2πRh इंटू आर प्लस एच, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस एच दैट इज हाउ मच 7/2, 14 प्लस 7/2, तो ये हो गया आपका 11 और इधर बचा आपका कितना 35। तो दिस विल बी हाउ मच 11 इंटू 35 दैट इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका कितना हो जाएगा भाई साहब सरफेस एरिया, सो दिस विल बी अगेन 2πr इंटू आर प्लस एच। So that's going to be how much our people are. This will be 2 into 22/7, ये हो गया 14, तो 616. So surface area of cylinder B is obviously more than surface area of cylinder A. ठीक है, okay. Find the height of a cuboid whose base area is 180 and the volume. तो आप देखो यहाँ पे cuboid है ये, इसको हम बोलेंगे भाई साहब। So cuboid is what people, ये आपका होता है cuboid, ठीक है। आपने इसको ज्वाइन कर दिया भाई साहब क्यूबॉइड, ठीक है। हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है, एनीवन? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज हाउ मच पीपल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। ये वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया कितना है आपका, ब्रेथ लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, 900 इज इक्वल टू, तो h का वैल्यू कितना आ गया 5। सो हेंस द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस दिस, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो साइड 6 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 60, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड 54, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना है भाई साहब 30। तो आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट 60 इंटू 54 इंटू 30, दैट इज हाउ मच साइड का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब दैट इज 6 का क्यूब, तो ये हो गया भाई साहब 216। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हो गया, या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया, ठीक है, ओके। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, कितने क्यूब्स हम इसमें डाल सकते हैं, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, उतने क्यूब्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कितने क्यूब्स फिट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। कितने वाले क्यूब्स, 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो आपके कितने आ रहे हैं भाई साहब यहाँ पे 10 इंटू, तो 450, हेंस 450 क्यूब्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल इट, ठीक है। ऐसे 450 क्यूब्स वैसे उसमें फिल हो जाएंगे।
Find the height of a cylinder whose volume is 1.54 and the diameter of the base is 150 centimeter. चलिए इसको जरा कीजिए फटाफट, क्विक एवरीवन. Okay, find the height of a cylinder whose volume is 1.54 मीटर क्यूबिक एंड डायमीटर ऑफ द बेस इतना है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बोलो. दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज हाउ मच 1.54. रेडियस कितना होता है, डायमीटर बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा 70. ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर क्योंकि देखो यूनिट्स को संभालना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे आपका यूनिट क्या है, देखो मीटर क्यूबिक है, तो इसको आप सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वन ऑफ द अदर थिंग यू हैव टू डू. तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 0.7 मीटर. ठीक है, 0.7 मीटर. सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम. तो 1.54 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच. ठीक है, ओके. तो 154 अगर 1.54 इंटू 100 कर दो और नीचे 1 इंटू 100, तो 154/100 आ गया. ये हो गया 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 टू एच. तो यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो गया. यहाँ पे 22 इंटू 7 कितना होता है 154. ठीक है, तो इन दो 10 को हमने इधर ले लिया और इस 100 को इधर लिया और 22/7 को नीचे ले लिया. सो दिस विल बी इक्वल टू एच. 22/14 टाइम्स 154 होता है. ये एक 0 और ये एक 0 कैंसिल हुआ, ये 2 7 14 हुआ, 7 और 7 कैंसिल हुआ. कितना आ गया आपका भाई साहब, h इज इक्वल टू 1 मीटर. हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर पीपल. ठीक है. अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and the length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है भाई साहब, सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, लीटर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई साहब, 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. ये याद रखिए. ठीक है, क्लियर है. तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हुज रेडियस इज आपका 1.5 एंड लेंथ इज 7. तो आपका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी हाउ मच 22/7 इंटू आर का स्क्वायर. ठीक है, उस रेडियस कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच, एच कितना है बोलो 7. तो ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, 2.25. तो ये हो गया आपका 22 इंटू 2.25. ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो कितना मिल्क आप, ये मीटर क्यूब हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया. तो इसको अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 22 इंटू 2.25 इंटू 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन इट. तो यहाँ पे 225 इंटू 22 कर लो भाई साहब, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 450. ठीक है, ये हो गया कितना 0 5 4 + 5 9 4. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3, ये 2 0 कट गए, तो ये हो गया आपका 49500 लीटर्स ऑफ मिल्क. ठीक है, 49500 लीटर्स ऑफ मिल्क. 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, तो इधर हो गया आपका कितना भाई साहब 4950. सो दिस इज हाउ मच 49.50 मीटर क्यूबिक. 1 मीटर क्यूबिक कितना होता है भाई साहब 1000 लीटर होता है. तो 49.5 मीटर क्यूबिक कितना हो जाएगा, दैट विल बी 49.5 इंटू 1000, दैट इज 49500 लीटर्स. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया 49500 लीटर्स. ठीक है. इफ ईच ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स इज सरफेस एरिया इफ ईच साइड होगा यहाँ पे. ठीक है, देखो क्यूब का भाई साहब सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू एल का स्क्वायर होता है. तो ये हो गया 6L का स्क्वायर. अभी न्यू क्यूब जो है उसमें क्या है, न्यू क्यूब क्या है भाई साहब, यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है आपको, साइड इज इक्वल टू L. तो न्यू क्यूब में आपका साइड कितना हो जाएगा 2L, है कि नहीं. इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, तो यहाँ पे कितना हो गया 2L. तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2L का स्क्वायर. तो 6 इंटू 4L का स्क्वायर, दैट इज 24L का स्क्वायर. हाउ मेनी टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, देखो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है 4 टाइम्स. सो सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज,
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है भाई साहब एल का क्यूब। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल का क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यू क्यूब का साइड कितना है? 2l, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2l का क्यूब, दैट इज 8l का क्यूब, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इज वॉल्यूम? तो l क्यूब से कितना हो गया? 8l का क्यूब, तो वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, ठीक है। सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स एंड वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। क्लियर 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 पीपल? ओके। ओरिजिनल सरफेस एरिया आपका कितना हो गया? 6 × 4 24। इंक्रीज सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओरिजिनल वॉल्यूम, so this will be 8, ठीक है। 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबोडियल रिजर्वियर, रिजर्वियर मतलब होता है टैंक, ठीक है। एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, 60 लीटर्स पर मिनट से एक क्यूबोडियल रिजर्वियर पे बेसिकली ये पोर आउट हो रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर इज कितना? 108 मीटर क्यूबिक, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर। तो आपका भाई साहब ये रिजर्वियर है और यहाँ पे वाटर आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो वाटर इज गेटिंग फिल्ड, तो ये वाटर फिल हो रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज हाउ द वाटर इज गेटिंग फिल्ड, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर कितना दिया हुआ है आपको? 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। 108 मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर क्यूब आपका कितना होता है? 1000 लीटर्स, ठीक है। सो 108 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 108 × 1000 लीटर्स, ठीक है। सो आपका वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सो वाटर इज पोर्ड एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, तो इसमें 60 लीटर्स पर मिनट के रेट से भाई साहब आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? दिस डिवाइडेड बाई 60, है कि नहीं। इतना चाहिए अपने को, 1 मिनट में इतना आ रहा है, तो कितने मिनट में भर जाएगा? 10800 अपॉन 60, ठीक है। सो टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर अपॉन टाइम टेकन। सो वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर कितना हो गया? 108,000 अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 60। सो इधर कितना हो गया भाई साहब? 1800 मिनट्स में ये भर जाएगा। इसको अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 60 कर दो, तो दिस विल बी 30 आवर्स, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 30 आवर्स। सो दिस विल बी 30 आवर्स। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। अभी फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर इज दिस मच, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 टाइम्स कहाँ से आ गया? ये गलत है भाई साहब, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागनल फील्ड एज शोन। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, एक तो हो गया इसका एरिया निकालो, फिर भाई साहब इसका एरिया निकालो, फिर भाई साहब इसका एरिया निकालो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, ठीक है। दैट इज हाउ बेसिकली यू कैन फाइंड इट आउट। दूसरा तरीका क्या है भाई साहब? व्हाट इज द अदर वे अराउंड? क्या ये ट्रेपेजियम है? नहीं है। देखो ये 20 है, ये 30 है, सो ये ट्रेपेजियम नहीं है। अगर ये 20 होता और ये भी 20 होता तो ये ट्रेपेजियम होता था। तो अभी आप इसका एरिया निकालोगे, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 30 × 20 हो गया। ये ट्रेपेजियम है क्या? इज दिस अ ट्रेपेजियम? दिस इज ऑल्सो नॉट अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? द पेंटागनल फैन इज डिवाइडेड इनटू ट्रेपेजियम DEFH। DEFH ट्रेपेजियम कैसे होगा भाई साहब? अच्छा, इन दोनों साइड्स को पैरेलल ले सकते हैं हम, इन दोनों साइड्स को पैरेलल ले सकते हैं, यस, ठीक है। DEFH, ठीक है। 4 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल है भाई साहब का, ये 1 2 3 और ये 4 ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज DH प्लस EF into distance between them, that is 40 plus 50, that is HF, है ना भाई साहब। So this will be half into DH, that is 20 plus 30 into 40 plus 50, ठीक है। So that will be 50 into 90। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो ये पैरेलल साइड्स हो गए ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 40 और ये 50 ऐड हो गया, 40 and 50, that will be half into 50 into 90, so that will be 25 into 90। 25 into 90, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना हो गया? 2250 मीटर स्क्वायर, 2250 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है,
ये हो गया आपका एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अभी हम इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल को निकालेंगे, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 30 और ये हो गया 30, नींद आ रही है तेरे को, ठीक है, हाफ इंटू बेस दैट इज EF इंटू हाइट, 30 इंटू 30 दैट विल बी, सॉरी 30 ये वाला निकाल रहे हैं ना, 30 इंटू 50, सो दिस विल बी हाउ मच, 750 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अभी हम इसका एरिया निकालेंगे, आगे लगे फायदा नहीं, 1 मिनट, अरे मेरे कैमरा में सर आता है, हाँ उन लोग वैसे भी ध्यान नहीं देते यहाँ पे बैठ के भी, जीएस तो करे ना हो ना यार। हाफ AEF में कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ, तो ये हो गया 750, ABG हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BG इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका 50 इंटू 50 प्लस 50, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये 50 प्लस 50, ये देखो हाइट हो गया, ये 50 है और ये 50 और ये 50 है, तो 25 इंटू 100, 2500 हो गया। अभी हम इसमें आते हैं, हाफ इंटू 30 प्लस 40 इंटू 50, तो ये हो गया आपका बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 30 प्लस 40 इंटू 50, तो 30 प्लस 40, सो ये हो गया आपका 1750, ठीक है। हाफ इंटू CDH, ये हो गया भाई साहब आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये हो गया 30 इंटू 30, सो दैट विल बी 20, हाँ इसका बेस 20 है ना और ये 30 है, ये सब कंफ्यूजिंग कर दिया भाई साहब, ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर। अभी आप भाई साहब ऐड कर लो, ठीक है, सो इन सबको ऐड कर लेंगे। अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 2250, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF कितना है भाई साहब आपका 750, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ABG ये कितना है आपका 2500, 1750 प्लस 300, तो एरिया ऑफ पेंटागन कितना हो गया 7750 मीटर का स्क्वायर, ठीक है।